Hello everyone, welcome back to our PYQ series Revised to ACE, and today we are going to discuss very important theme, very important subject rather from UPSC CSC prelims point of view. Environment से सबको डर लगता है, environment जितना भी पढ़ लो कम लगता है ना? फिर आपको लगता है ये क्वेश्चन आया कहाँ से, फिर करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस रहता है, स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस रहता है, देन वी विल डू आवर बेस्ट टू कवर द many sources, not only important sources, जहां से जो मिल जाता है पढ़ लेते हैं. So today we are going to discuss the environment questions, and we have taken the questions from those exams which UPSC has conducted recently. In fact, today whatever question we will discuss, this exam was conducted in the month of February itself, 2023, right? Just एक महीने पहले हुआ है. तो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स देखेंगे आज? देखेंगे हम लोग इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड. Then we will discuss about the pyrophilous organisms and duff. सुना है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में बताओ ये क्या है. नहीं सुना है तो क्वेश्चंस की हेल्प से देखेंगे क्या है कैसे है. Okay, so here we have the first question for all of us. So the question is, what is ecological amplitude? The first option A, B, C, D, I will read it out. The range of demands and consequent range of tolerance of a species to the fluctuations in the environmental conditions. B, the range of tolerance of a species in constant environmental condition. यहाँ पे क्या है फोकस? constant environmental condition. Then we have C, the range of demands of a species in a constant environmental condition. तो यहाँ range of demand है, यहाँ range of tolerance है. D, the range of ecological conditions found in a biome. एक बायोम में जो भी इकोलॉजिकल कंडीशंस पाई जाती हैं क्या उसकी रेंज को बोलते हैं इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड. नाउ इफ यू नो प्लीज लेट मी नो योर स्टैंड, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज योर आंसर, ए बी सी डी. अदरवाइज तो डिस्कशन शुरू करते हैं. सो बिफोर वी डिस्कस वी शुड नो few things that every organism in this world we have organisms में हम भी आ जाते हैं. So every organism in this world has the ability to adapt to the changes which are happening. अब global environment change हो रहा है, हमारे अंदर भी adaptability आ गई है. In a similar manner सारे species के अंदर होती है. So every organism in this world has ability to adapt to changes to its surrounding, which allows them for tolerating small changes in its environment such as changes in temperature, humidity. Tolerate करता है एक लेवल तक, एक लेवल के बाद टॉलरेट नहीं क्या करेगा तो क्या होगा? एक्सटिंक्ट हो जाएगा, मर जाएगा, या कुछ और अडेप्टेबिलिटी आ जाएगी, माइग्रेट कर जाएंगे. माइग्रेशन इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ अडेप्टेबिलिटी. एवरी स्पीशीज, और ये जो टॉलरेंस का रेंज होता है, सो एवरी स्पीशीज हैज स्पेसिफिक रेंज विद इन विच इट कैन टॉलरेट इकोलॉजिकल चेंजेस. दिस रेंज इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड. गॉट इट? चलो दूसरी तरीके से समझते हैं. Different species differ from each other. Every species differ from each other in terms of what? Their demands, and also in respect to extent to which they can tolerate fluctuations. उनकी क्या डिमांड है, इसलिए niche word यूज होता है, ecological niche. नेचर से environment से उनकी क्या डिमांड है और वो किस लेवल का टॉलरेंस, चेंजेस जो भी फ्लक्चुएशन हो रहे हैं एनवायरमेंट, वो किस लेवल तक टॉलरेट कर सकते हैं. So this is about different species and the range of demands of consequent range of tolerance. So the range of demands of consequent range of tolerance, तो जिस लेवल पे वो टॉलरेट कर सकता है, उस जो रेंज है टॉलरेंस की, उसी रेंज में जो डिमांड्स की रेंज होती है, that is called as ecological amplitude. It can be high or it can be low. सिंपल ये समझ लो कि जो भी environmental fluctuations हो रहे हैं, हर स्पीशीज को उसको टॉलरेट करने का एक रेंज होता है और हर स्पीशीज की अपनी डिमांड होती है. डिमांड विल वेरी, एडेप्टेबिलिटी या जो टॉलरेंस लेवल है वो भी वेरी करेगा. अब एक्सट्रीम कुछ है तो उसका डिमांड कुछ और होगा. अगर कोई चीज नॉर्मल कंडीशंस में, उस टाइम पे उस स्पीशीज की डिमांड कुछ और होगी. उसको कहते हैं इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड. इट कैन बी हाई, इट कैन बी लो. राइट? चलो एक और तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं. सो वी हैव इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड ऑफ स्पीशीज इज रिलेटेड टू व्हाट? जोन ऑफ स्ट्रेस? नो. जोन ऑफ ऑप्टिमम टॉलरेंस?
Range of a factor? No. Area with zones of optimum tolerance ranges of all determining factor. तो ये है आंसर. जितने भी डिटरमाइनिंग फैक्टर होते हैं ऑल, उसमें एरिया विद जोन्स ऑफ ऑप्टिमम टॉलरेंस उसको बोलते हैं. तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है. व्हाट इज इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड? इट इज एरिया विद जोन्स ऑफ ऑप्टिमम टॉलरेंस रेंजेस ऑफ ऑल डिटरमाइनिंग फैक्टर्स. सारे होते हैं. नाउ इफ वी टेक द क्वेश्चन, ओके विल कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन. सो अभी इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड आप समझ गए. जब भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हो, देन अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट वी शुड नो is the other keywords: ecotone, ecoline, edge effect, edge species. This we have already discussed. Revision of important topics through PYQs. This video was published on 30th April 2022. You can go and check in the playlist. In the ecology environment का जो playlist है उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी. Last year prelim से पहले ये डिस्कस किया था. That was also PYQ series. Okay? So revise. Immediately you should revise the concepts. We will provide the link of these videos in the comment section. We will pin that comment. ये related concept है, इसको यहीं revise कर लेना. Ecological amplitude, ecotone, ecoline, edge effect, edge species. These are concepts. आज हम current affairs की बात नहीं कर रहे, आज हम concepts की बात कर रहे हैं. Related concept जो हमें पता होने चाहिए. Other related video is there where we have discussed some other ecological key terms. For example, we have discussed about biotope, habitat. We have discussed about biotope versus biocenosis and ecosystem. We have discussed about biotope and niche, ecosystem, biome, biosphere. ठीक है, कुछ अच्छे से समझाया भी है वहां पे, एनालॉजी देखे. ये भी वीडियो यहां देख लेना. पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक जो है इकोलॉजी के कीवर्ड्स वो रिवाइज हो जाएंगे. So see, this is what you have to do. Take one question and with the help of that question 360 degree analysis करके सारा कुछ रिवाइज करना चाहिए. तभी PYQ सॉल्व करने का मजा आता है. So if we take our question, now we will see the question and the statements again. What is ecological amplitude? It is the range of demands, consequent range of tolerance of species to fluctuations in the environmental conditions. अपना आंसर तो यही है. इस आंसर में क्या प्रॉब्लम है? बी, द रेंज ऑफ टॉलरेंस ऑफ स्पीशीज इन कांस्टेंट. नो. द रेंज ऑफ डिमांड्स ऑफ स्पीशीज इन कांस्टेंट. नो. द रेंज ऑफ इकोलॉजिकल कंडीशंस फाउंड इन बायोम. नो. सो आवर आंसर इज ए. राइट? दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. सो व्हाट वी हैव डन टुडे, हमने कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को आज लिया है. एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन द रिसेंट एग्जाम, जियो साइंटिस्ट एग्जाम, व्हिच वाज कंडक्टेड इन फरवरी 2023. इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 क्वेश्चंस टुडे, एंड विद द हेल्प ऑफ दोस 3 क्वेश्चंस वी आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी. लेट्स टेक द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे. सो द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे इज, व्हाट इज पायरोफाइलस ऑर्गेनिज्म? पायरोफाइलस ऑर्गेनिज्म क्या है? Is it fresh grass growing after ground fire, or fungi growing in soils of burnt terrains, seeds germinating after clear felling of forest, or it is organisms with capacity to regenerate the tail after it was lost due to damage? अभी 3 स्टेटमेंट तो फायर से रिलेटेड है, एक स्टेटमेंट टेल से रिलेटेड है, बायोलॉजिकल कैपेसिटी से रिलेटेड है. ये तो पता चल गया ये फालतू ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है. फायर से रिलेटेड कुछ है, इसीलिए 3 स्टेटमेंट में फायर वर्ड यूज हुआ है. कभी कभी यूपीएससी धोखा भी दे सकती है. सो डोंट गो बाय द फेस वैल्यू. कॉन्सेप्ट पता हो तो देख लेना, वैसे ये जनरल चीज है, कॉमन सेंस से हटा सकते हैं. अब फायर से रिलेटेड ये ग्रास है, फंगी है या सीड्स हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो वी विल डिस्कस इट. अभी ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कहां से करना है? Sometimes these things will be there in the news, but we ignore them. However, to tell you, this information was there in year 2021. ऐसा भी नहीं है कि recent 1 year में ये news में था. 2021 में नवंबर के मंथ में इंडियन एक्सप्रेस में this article was there, and there was a research work which was published, and it is saying this fire-loving fungus eats charcoal.
इफ इट मस्ट, अगर जरूरत पड़ी तो वो चारकोल को भी खा लेता है। तो है क्या ये? फायर लविंग फंगस। Okay, this fungus is breaking down charcoal after a fire, then that could help open up a food source for the next generation of microbes that cannot eat charcoal, making Pyronema an important player in the post-fire recovery. So ये एक फंगस है जो कि चारकोल को फीड करता है। अगर कहीं फायर लग गई है, फायर लगने के बाद वहां के वुड वगैरह होते हैं वो चारकोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं। ये फंगस पहले तो वो उस जो डेड ऑर्गेनिजम्स के लेयर है उसको फीड करता है, खाते खाते अगर जरूरत पड़ी तो चारकोल को भी खा लेता है। दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल वाज टॉकिंग अबाउट। तो ऐसी डिस्कवरी हुई है। सो व्हाट दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट, उस आर्टिकल में ये डिटेल दिया हुआ था, दिस सर्टेन फंगी आर नोन एज पायरोफाइलस और फायर लविंग। पायरोफाइलस मतलब फायर लविंग, फाइलस, ठीक है। फोबिया अलग होता है, फिलिया अलग होता है। After a fire, pyrophilous fungi show up from nowhere. पता नहीं होता कहां से आ गए, but still they come, and they will come and they have started eating up. So some sprouts in fiery shades of orange and pink. वो दिखते कैसे हैं? कुछ orange and pinkish दिखते हैं। I will show you. ठीक है? So कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पहले तो यही देख लेते हैं कि ये जो फंगी है पायरोफाइलस फायर लविंग, कुछ ऐसा होता है ऑरेंज ऑरेंज जैसा। सो ये एक सॉइल है जहां पे फायर लगी है, ग्राउंड फायर कहीं किसी जंगल में लगा है, वाइल्ड फायर, एंड वहां पे कुछ ये मॉस हैं ऑन दैट वुड, एंड दीज ऑरेंज कलर के जो है ऑरेंज व्हाइटिश, ये आपको जो दिख रहे हैं, दीज आर दी फंगस, पायरोफाइलस फंगस। कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं। जब भी कहीं वाइल्ड फायर लगता है, सो इन केस ऑफ वाइल्ड फायर, सीवियर वाइल्ड फायर, अ लॉट ऑफ कार्बन एट द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल विल बी एक्सपोज्ड. It goes into atmosphere as carbon dioxide. Second, some of the carbon dioxide stays in the form of charcoal or what scientists call pyrolyzed organic matter. कुछ microbes होते हैं, insects होते हैं, they will explode and die. But we have this Pyronema, जो कि ये फंगस की फैमिली को बोलते हैं। They are an important player in the post-fire recovery. So what they are doing, these pyrophilous or fire-loving fungus, they eat and they help in regeneration of that area. So they are what? Now we know. Let's revisit the question again. So the question is, pyrophilous organism, they are fresh grass growing, so no. Seeds, no, इसको हमने एलिमिनेट कर लिया था, टेल वगैरह नहीं है। सो इट इज फंगी ग्रोइंग इन सॉइल्स ऑफ बर्न्ट टेरेन्स। इससे पहले हम लोगों ने इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड देखा, रेंज ऑफ डिमांड एंड रेंज ऑफ टॉलरेंस इन फ्लक्चुएटिंग सिचुएशंस, फ्लक्चुएटिंग कंडीशंस। ये अडेप्ट कर रहा है इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। सो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड पढ़ा, उसका एग्जाम्पल देखा, अभी हम फायर की बात कर रहे हैं। नाउ देयर इज अ रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बिफोर नेक्स्ट क्वेश्चन there is another related video which I want all of you to go through. Is this was also published on 23rd April and related concepts are there. So we have discussed here about hyphae, we have discussed about fungus. Hyphae, I think it was asked in last year prelims, and before that we discussed this video. Fungus, plant disease, human disease, microorganisms, we have discussed about bacteria, virus, fungus, algae, protozoa, algae farming and algae bloom. ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, रिलेटेड वीडियो है, इसको रिवाइज कर लेना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, फंगस की बात हो रही है, सो रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको सब पता होना चाहिए। वीडियो रेडी है, प्रिपेयर कर लो। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज व्हाट इज डफ? पार्शियली डिकम्पोज्ड लिटर, weathered rock, muddy puddle, carcass of dead animal. पढ़ा है, सुना है, कई बार ये न्यूज़पेपर में आता है, कई बार हमारे सामने आंखों के सामने आर्टिकल्स में रहता है, एंड वी इग्नोर, या पढ़ते हैं लेकिन उसका मीनिंग ही नहीं पता होता है। सो व्हाट इज डफ? डफ इज बेसिकली, इफ वी टॉक अबाउट फॉरेस्ट फ्लोर में दो तरीके की डेब्रीज होती हैं, कई तरीके की होती है इनफैक्ट, बट डेब्रीज के रेस्पेक्ट में लिटर की बात करें, सो दे आर हाईली फ्लेमेबल एंड दे आर द टॉप डेब्रीज, और इसकी वजह से इंटेंस फायर लगता है।
बट वही लिटर अगर थोड़ा सा सेमी डिकम्पोज रहता है, सो दैट इज कॉल्ड एज डफ. सो ये अंडर लेयर है, फुल ऑफ फंगस, डिकम्पोजिंग मैटर, सो इट एक्ट्स एज ए इंसुलेशन, एंड उसके अंदर बहुत सारा डिकम्पोजिशन की वजह से गैस बिल्डअप होता रहता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट गैस विच इज रिलीज फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उसमें मॉइस्चर रहता है, सारी चीजें रहती हैं. तो जब कंबशन होता है तो उसमें आग धीरे धीरे से लगती है. बेसिकली कहें तो ऐसा धुआं सा उठता है. और स्पेशली ये जो पेड़ होते हैं, पेड़ के फुट पे या जो रूट्स होते हैं उनके आसपास, मतलब ग्राउंड पे पेड़ के नीचे होता है. सो अगर वहां आग लगी तो ऐसे इंटेंस आग नहीं लगेगी लिटर जैसे, लिटर ड्राई होता है. बट डफ में अगर लगेगी वो धीरे 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 आग लगेगी, बट बहुत वाइल्ड हो सकता है, बहुत वाइड स्प्रेड हो सकता है. ओके, सो दिस इज अबाउट डफ. एक बार और समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो हैं रिलेटेड चीजों के. लिटर इज अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर. डफ इज इट डिकेज स्लोली एंड व्हेन पार्शियली डिकम्पोज्ड इट इज कॉल्ड एज डफ. जब फुल्ली डिकम्पोज हो जाता है तो उसको ह्यूमस बोलते हैं. सो हियर वी हैव लिटर, ड्राई पत्ते, जो सूखे पत्ते डंठल होती हैं वो. देन सेमी डिकम्पोज्ड इट इज डफ, फुल्ली डिकम्पोज्ड ह्यूमस, और जब वो मिट्टी में मिल जाता है देन इट विल बी कॉल्ड एज मिनरल सॉइल. सो हियर वी हैव डफ टॉप पे, फिर ह्यूमस, फिर मिनरल सॉइल. ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट है. So now see how we started with ecological amplitude. We discussed about the fungus range of tolerance. Then we discussed about the duff. उस fire के पीछे reason क्या होता है. Now let's revisit the question again. So we have our question here, and the question is, what is duff? It is partially decomposed litter. Okay, so let's revise the question, whatever questions we have discussed. Ecological amplitude, we know, range of demands of consequent. Important क्या है? Fluctuations in environmental conditions होनी चाहिए. Second question of the day was pyrophilous organisms. So they are fungi growing on the soils on the soils of burnt terrains. Fire के बाद होता है. और ये fire कैसे लग रही है? ये fire लग रही है partially decomposed litter की वजह से. ठीक है, तीनों इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे. आई होप यू हैव गॉट द एग्जाम्पल ऑल्सो, यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एज वेल, एंड ये आपस में इंटर रिलेटेड कैसे हैं ये भी पता चल गया. ओके, सो दीज थ्री वर आस्क्ड बाय यूपीएससी इन द रिसेंट एग्जाम. जियो साइंटिस्ट का एक एग्जाम था, इकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट. अच्छा, दे आर नो वे रिलेटेड टू जियो साइंटिस्ट. आप ये मत सोचना कि ये तो बहुत टेक्निकल है. ये उनके जीएस के पेपर में था. जियो साइंटिस्ट में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, हर जगह सीडीएस में एक जीएस का पेपर होता है. सो उस जीएस पेपर में ये सारी चीजें पूछी गई हैं. सो दिस इज इट गाइज, एंड यू हैव टू गो थ्रू दीज वीडियोज, द कॉन्सेप्ट वीडियोज, हाइफे, फंगस, एल्गे, इकोलॉजिकल, बायोटोप, बायोम, नीश, एंड देयर वाज अनदर वीडियो इकोटोन, इकोलाइन, एज इफेक्ट. ये सारी वीडियोज भी रिवाइज कर लो. बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज रिवाइज हो जाएंगे. दिस इज इट इन टुडेज वीडियो. Hope it was very helpful for you. I'm sure it would be, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया पढ़ा के भी और ये कॉन्सेप्ट्स को आपको समझा के, समझ के. Now about current affairs. So this current affairs course we are going to start another batch in the month of April. ये बैच करंट अफेयर्स के लिए अभी काफ़ी टाइम है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर कंपाइलेशंस की टेंशन नहीं लेनी है. वी आर डिस्कसिंग इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट. द कोर्स इज कमिंग आउट रियली वेरी गुड. वी आर डिस्कसिंग ऑल द रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन. वी आर डिस्कसिंग द PYQs when and wherever it is required. So you can check the details in the description box about the features, the demo video, and अगर करंट अफेयर्स से डर लग रहा है, you are most welcome. Take care guys. See you all. Be safe. Weather transitions हो रहे हैं, बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं. So take care of your health. You cannot afford. Okay? See you all. Bye-bye.